Hello friend, I am Balwant Singh, Assistant Professor in the Department of Electronics and Communication Engineering, IMS Engineering College, Ghaziabad, and which is affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. In the last lectures, we had discussed about the jet transform, and also we had discussed about some example which where we taken the jet transform. In this lecture, we will discuss some basic properties of the jet transform. इससे पहले हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो प्रॉपर्टीज़ देखी थी ऑलमोस्ट सेम है, उनके डेरिवेशन पैटर्न इज़ आल्सो सेम. सो हियर वी विल we have first of all we have linearity property, and suppose we have a signal x1n and x2n, and you have a system. Suppose this is your system and we have a signal x1n and the jet transform is x1z, another signal x2n and the jet transform of x2n is x2z. So, the system is linear. अगर आपका लीनियर कॉम्बिनेशन जो आपके इनपुट हैं x1n और x2n दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया जाए और उसके इंडिविजुअल आउटपुट भी का लीनियर कॉम्बिनेशन आए तो आपका सिस्टम क्या होता है, लीनियर होता है. एंड हियर इन द जेट ट्रांसफॉर्म लीनियरिटी प्रॉपर्टी जस्टिफाई हो रही. मीन्स इफ वी टेकन द जेट ट्रांसफॉर्म a x1n plus b x1, then we will get a x1z plus b x2z. So, just jet transform follow the linearity property. Next property is shifting property. Suppose we have a signal xn and the jet transform of xn is represented by xz, and if we shift right shift or left shift, if we shift signal xn right or left, then suppose we are shifting a signal as xn minus n naught, and if we take the jet transform of xn minus n naught, तो आपका जेट ट्रांसफॉर्म जो होगा एक्स जेड मल्टीप्लाइड बाई जेड की पावर माइनस एन नॉट. नोट दैट आर ओ सी विल वी सेम, मीन्स इफ द आर ओ सी ऑफ this is R, then the shifting signal have also the same ROC, but except for the possible addition and deletion of origin or infinity. Origin or infinity. Next property is scaling in the jet domain. Similar same if we have a signal xn and the jet transform of xn is xz. So, according to this property, if we multiply the time domain signal with z naught ki power n, then it will be xz upon z naught. Note that if the ROC of xn is R, then their ROC will change and it will become mod z naught into R. It will become mod z naught into R. Okay. In this example, अगर हम सपोज करते हैं z naught is equals to e into e की पावर j omega naught, then put the value of z here, z naught here, then you will find e की पावर j omega naught and x n, and if we put this value here, so you are able to get x e की power minus j omega naught z. So, this is the scaling in z domain, means with the division of z naught or multiplication of 1 upon z naught से आपका क्या हो रहा है, z डोमेन का स्केलिंग हो रहा है. दैट्स वाई दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज स्केलिंग प्रॉपर्टी एंड टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी. सिमिलरली आपका वही सेम सिग्नल है एक्स एन और उसके जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड है और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस
सेम है आपका r ही है, देन आपका अगर x माइनस n का z ट्रांसफॉर्म लेंगे इट विल बिकम x 1 माइनस z एंड ROC भी आपका चेंज हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। अगर इस सिग्नल का ROC xn सिग्नल का ROC r है, देन x माइनस n का जो हम ROC लेंगे वो हो जाएगा 1/r। सो Z0, so if the Z0 is in the ROC for xn, then 1/Z0 is the ROC for x minus n. Next property is time expansion property. टाइम एक्सपेंशन प्रॉपर्टी। पहली चीज़ तो ये है कि जो कंसेप्ट टाइम एक्सपेंशन के लिए हमने कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल में बात करी थी वहाँ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज डिस्क्रीट इंस्टेंट पे आपका डिस्क्रीट टाइम डिफाइन किया जाता है। दूसरा, द डिस्क्रीट टाइम कंसेप्ट ऑफ टाइम एक्सपेंशन that is of inserting a number of zeros between successive values of discrete time signal xn can be defined and does play an important role in the discrete time signal and system analysis. Means we will यहाँ पे जो discrete instant हैं, means suppose we have this type of signal 1 2 3, these are the instant, this is -1 -2। इसके बीच में अगर आप कुछ वैल्यू आप पुट करते हैं तो इस तरह से टाइम एक्सपेंशन की बात करी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ए सीक्वेंस, अगर आपने सपोज करो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इंसर्टिंग ए नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ डिस्क्रीट टाइम xn, एक्सपैंड करने के लिए, तो सपोज करते हैं जो नया सीक्वेंस बना है उसको हमने अगर xkn के नाम से दिया है, तो xkn इज डिफाइंड बाई xn बाई k इफ n इज मल्टीपल ऑफ k। इफ n इज मल्टीपल, कितने नंबर ऑफ जीरोज आपने इंसर्ट किए हैं वो k रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपका इज नॉट मल्टीपल ऑफ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दूसरी बात इसमें सपोज करते हैं यहाँ पे k माइनस 1 जीरोज इंसर्टेड बिटवीन सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ ओरिजिनल सिग्नल। और इसी बात को समझने के लिए हम समझते हैं वी हैव ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल xn एंड द जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल इज xz एंड ROC इज r। सो अगर आप xkn का जेट ट्रांसफॉर्म लेंगे इट विल बिकम xz की पावर k एंड ROC विल बिकम r की पावर 1 by k, and that is if z is in the ROC of xz, then the point z की पावर 1 by k is in the ROC of xz की पावर k. Also we have to understand that if xz has a pole या जीरो दोनों में से कोई at z is equals to a, so हमको ये भी समझना पड़ेगा कि xz की पावर k has also pole as 0 at a की पावर 1 by k. नेक्स्ट है द डिफिनीशन ऑफ xz, यानी z ट्रांसफॉर्म का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ऐसे डिफाइन किया जाता है xz इज टू समेशन n इज टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट x n z की पावर माइनस n। सो अगर हमको xz की पावर k निकालना है इट विल बी डिफाइंड लाइक n इज टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, z की जगह पे क्या हो जाएगा, z की पावर k हो जाएगा। इस जगह पे हमारा क्या हो गया, z की पावर k हो गया। सो applying some basic mathematics we are able to get this mathematical expression, means z की पावर माइनस n की जगह आपका आ गया z की पावर माइनस kn। ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ द टर्म z की पावर मतलब माइनस kn को हमने m मान लिया, km इज ट्रीटेड एज m। सो यहाँ पे हमको समझना है कि द टर्म z की पावर माइनस m इज दिस पावर सीरीज इक्वल टू 0 इफ m इज नॉट मल्टीपल ऑफ k एंड इक्वल टू कैपिटल X m बाई k इफ m इज मल्टीपल ऑफ k, जैसे कि हमने इस वाले इक्वेशन में आपको समझाया था।
Next property means time expansion, mean we are expanding the signal. Okay. Next is conjugation property. Same आपका सिग्नल एक्स एन है, जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड है, आर ओ सी इज डिफाइंड एज आर. If we are taking the conjugate of x n, that is this one, then the z transform will become conjugate of x z conjugate, but note that the ROC will not change. यहाँ पे हमको ये भी समझ सकते हैं x z equals to x conjugate x z naught, but here we have to understand that here x n is the real value, means imaginary part यहाँ पे नहीं है, सिर्फ आपका real part available है. So x z has a pole. If x z has a pole as well as 0 at z is equals to z naught, it must also have a pole or 0 at the complex conjugate point z is equals to z naught. This is the very important point you have to note about the conjugation property. Next property is very well known property, convolution property. Convolution property टाइम डोमेन में आपका मल्टीप्लिकेशन है अगर दो सिग्नल का, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में दोनों सिग्नल का कन्वोल्यूशन है अगर टाइम डोमेन में दोनों सिग्नल का, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. सपोज वी हैव ए सिग्नल एक्स एन एंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन इज एक्स वन जेड एंड द सेकेंड signal is x2n and the z transform is x2z, and ROC is defined R1 and R2 respectively. Then if we take the convolution of both signal, means x1n and x2n, it will become x1z into x2z, and the derivation is same as जैसे कि हमने DTFT, CTFT एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म में देखा था. इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं. सपोज करते हैं दो आपके सिग्नल हैं, फर्स्ट वन इज एच एन, सेकेंड वन इज एक्स एन. इन दोनों सिग्नल का हमको कन्वोल्यूशन लेना है और कन्वोल्यूशन जो है आपका वाई एन है, मीन्स वाई एन इक्वल टू एच एन कन्वोल्यूशन विद एक्स एन, और एच एन इज डिफाइंड एज डेल्टा एन माइनस वन. दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द एच एन. तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा एन एन माइनस वन का जेड ट्रांसफॉर्म लें तो डेल्टा एन का जेड ट्रांसफॉर्म 1 होता है, और यहाँ पे देखो हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा जेड इनवर्स. ठीक है. दूसरी बात अगर हम एक्स एन है इसका जेड ट्रांसफॉर्म लें तो एक्स जेड हो जाएगा. अब देखो वाई एन इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई एन अगर हम देखें जेड ट्रांसफॉर्म के टर्म में, अगर वाई एन का जेड ट्रांसफॉर्म लेना है तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाइड बाई इसका जेड ट्रांसफॉर्म, यानी 1 माइनस जेड इनवर्स इनटू एक्स जेड. सिंपल, वी अप्लाई द कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ द जेड ट्रांसफॉर्म एंड विद आरओसी, जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया आरओसी क्या होता है आपका इंटरसेक्शन होगा, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो आरओसी होगा. सो आरओसी इक्वल्स टू आर विद द पॉसिबल डिलीशन ऑफ जेड इक्वल्स टू 0 एंड और एडिशन of z is equals to 1. Next property is the differentiation in the z domain. xz similar, xz z ट्रांसफॉर्म है आपका xn का with ROC आपका r दिया हुआ है. Then according to this property, if आपको अगर n xn का z ट्रांसफॉर्म लेना है then it will become minus z into differentiation of x z with respect to the z. ROC will not change. To better understand, let's have a signal which is represented in the z domain, and this is the x z is equals to log 1 plus a z inverse, where mod z is greater than mod a. अब यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टी हमारी क्या है, हमको इतना पता है कि एन एक्स एन इक्वल टू होता है माइनस जेड डी एक्स जेड अपॉन डी जेड. आपको एक्स जेड दिया हुआ है तो हम इसको सिंपल डिफरेंशिएट कर लेते हैं. यहाँ पे हमने एक्स जेड की वैल्यू लिख दी. वी आर एबल टू गेट ए जेड इनवर्स अपॉन 1 प्लस ए जेड इनवर्स. आरओसी नहीं चेंज हो रहा. दूसरी बात, हमको वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म हमने a की पावर n u n का जेड ट्रांसफॉर्म लिया था. इट इज़ इक्वस टू 1 अपॉन 1 माइनस ए जेड इनवर्स. ये हमको पता है. इफ़ वी अप्लाई द लीनियरिटी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे देखो
हमने क्या करा, a की जगह -1 a रख दिया, a की जगह क्या रख दिया, a की पावर n था लास्ट वाले, माइनस a रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए जेड इनवर्स। दूसरा हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया, एक मैथमेटिकल ट्रिक हमने ये लगाई। दूसरा अब समझना है हमको, कंबाइनिंग विथ टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर हमने लगा दिया, यानी हमने क्या करा है, n की जगह n-1 कर दिया। देखो माइनस ए की पावर n-1 और un था तो un-1, यानी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा z इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई जो आपका इसका z ट्रांसफॉर्म था। तो z इनवर्स और इसका z ट्रांसफॉर्म a/1 प्लस ए जेड इनवर्स था। तो आपका यानी a माइनस ए की पावर n-1 un-1 का z ट्रांसफॉर्म क्या निकल के आ गया आपका, ए जेड इनवर्स अपॉन 1 प्लस ए जेड इनवर्स। नोट दिस पॉइंट। एंड अब अगर हम प्रीवियसली देखते हैं तो यहाँ पे आपको समझ में आता है कि n(xn) का जेड ट्रांसफॉर्म क्या निकल के आ गया था, ये निकल के आ गया था। यानी अगर हम समझें तो n(xn) इक्वल्स टू, इस डिस्कशन से हमको समझ में आता है n(xn) किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसका भी जेड ट्रांसफॉर्म ये है और n(xn) का भी जेड ट्रांसफॉर्म ये है, तो n(xn) इक्वल्स टू इतना है। सो n से हम डिवाइड कर दे तो वी आर एबल टू गेट द टाइम डोमेन सिग्नल xn विच इज इक्वल्स टू माइनस ए की पावर n-1 डिवाइडेड बाई n un-1। यानी कि आपका z डोमेन में xz ये दिया हुआ है, तो टाइम डोमेन में आपका जो सिग्नल निकल के आएगा x ये निकल के आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करते हैं xz आपका दिया हुआ है ए जेड इनवर्स और ए जेड इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए जेड इनवर्स का होल स्क्वायर, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मॉड जेड इज ग्रेटर देन मॉड ए। सो यहाँ पे भी हमको ए की पावर n un, इसका जेड ट्रांसफॉर्म हमको पता है ये होता है। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी सिमिलरली जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में लगाया था, ए की पावर n un, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, सो वी विल गेट ए जेड इनवर्स अपॉन 1 प्लस ए जेड इनवर्स का होल स्क्वायर। सो देखिए ये चीज हमको समझना है, ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, ठीक है। तो यानी कि टाइम डोमेन में क्या हो जाएगा आपका n ए की पावर n un, यानी अगर हम ए जेड इनवर्स 1 प्लस ए जेड इनवर्स का होल स्क्वायर इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इट विल बिकम n ए की पावर n un होगा। नेक्स्ट इज द इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इफ xn इक्वल्स टू 0 मीन्स जो आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो 0 है फॉर n इज लेस देन 0, यानी फॉर n इज लेस देन, दिस इज द 0 1 2 3, दिस इज द -1 -2 -3, यानी xn इस एक्सिस में 0 है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम x0 इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट xz, यानी अगर हमको कोई सिग्नल टाइम डोमेन के बजाय z डोमेन में दिया हुआ है, सो बाय यूजिंग इनिशियल वैल्यू थ्योरम वी कैन कैलकुलेट इनिशियल वैल्यू ऑफ xn, दैट इज x0। सो दिस प्रॉपर्टी फॉलोज बाय कंसीडरिंग द लिमिट ऑफ ईच टर्म इंडिविजुअली in the expression for the z transform with xn 0 for n is less than 0. Always remember, this is the basic definition of the z transform, and as z tends to infinite, z की पावर माइनस n क्या होगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा, for n is 0 and where n is equals to 0. This is the basic principle. As one consequence of the initial theorem for the causal sequence, if x0 is the finite, then limit z tends to infinite, this will become a finite. So better understand, let's have a example जो कि हमने पहले करा हुआ है। आपका जो एक सिग्नल दिया है xn 7 1 by
7 इंटू 1/3 की पावर n u n माइनस 6 1/2 की पावर n u n। यहाँ पे देखो टाइम डोमेन में हमको ये सिग्नल दिया है, अगर हम n इक्वल्स टू 0 रखें तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 1 रखेगी। चाहे इस n की जगह हम 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। लेकिन देखो इसका हमने जेड ट्रांसफॉर्म निकाला है लास्ट एग्जाम्पल्स में, तो जेड ट्रांसफॉर्म इस सिग्नल का एक्स एन यानी एक्स जेड जो दिया हुआ है ये है आपका 1 माइनस 3/2 जेड इनवर्स अपॉन 1 माइनस 1/3 जेड इनवर्स इंटू 1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स। ये जेड ट्रांसफॉर्म एक्स एन का है। अगर इसमें हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करें तो वी विल गेट द इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट। लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट इस वाले एक्सप्रेशन में आप लगाइए एंड वी विल गेट एक्स जेड इक्वल्स टू 1 विच कंसिस्ट with the initial value theorem. Next, with the help of the reason of convergence and the basic concept of Z transform, हम कोई discrete time signal दिया हुआ है तो उस causal है कि stable, ये भी बता सकते हैं। For causality, a discrete time LTI system with rational system function Hz is causal if and only if, remember, note that पहली चीज़ क्या होना चाहिए, the ROC is the exterior of the circle outside the outer most pole। यानी अगर हम जैसे लास्ट एग्जांपल में इसका जो आउटर मोस्ट पोल है 1/2 है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो इस वाले में अगर हम इसको ड्रॉ करें, ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/2, ठीक। आउटर मोस्ट पोल ये है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अगर यहाँ पे कह रहे हैं एक्सटीरियर बाहर की तरफ है तो आपका सिस्टम कॉजल हो सकता है, लेकिन ये भी होना चाहिए द एच जेड एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल इन द जेड, द ऑर्डर ऑफ द न्यूमरेटर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द ऑर्डर ऑफ द डिनोमिनेटर। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हैं तो सिस्टम कॉजल होगा। और स्टेबिलिटी के लिए क्या है, ए सिस्टम इज कॉजल, a causal LTI system with a rational system function Hz is stable if and only if all of the poles of Hz is inside the circle, that is they must all have magnitude smaller than 1। जो आपका यूनिटी सर्किल है उसके अंदर आपका सारे पोल होने चाहिए तो आपका सिस्टम स्टेबल होगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें हमारे एच जेड दिया हुआ है, एच जेड 1/1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स प्लस 1/1 माइनस 2 जेड इनवर्स। आउटर मोस्ट पोल यहाँ से हम समझ सकते हैं क्या है, आपका दो पोल है, एक 1/2 है, दूसरा 2 है, तो आउटर मोस्ट पोल क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। तो ये कंडीशन आउटर मोस्ट एक आपका 1/2 है और एक 2 है। और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या दिया हुआ है, 2 से बाहर। तो पहला जो कंडीशन है कॉजलिटी के लिए वो फुलफिल है। दूसरा रेशियो ऑफ द पॉलिनोमियल्स हमको चेक करना है, तो इसी को थोड़ा मैथमेटिकली सेग्रीगेट करा तो हमको ये इक्वेशन मिल गया। एंड ऑल्सो आफ्टर द अप्लाई सम मैथमेटिक्स वी आर एबल टू गेट दिस इक्वेशन 2z इनवर्स माइनस 5/2z अपॉन z स्क्वायर माइनस 5/2z प्लस 1, सो दैट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ Hz बोथ of degree of 2 and consequently we can conclude that the system is causal because this is the ratio of the polynomial, okay। next और इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म अगर हम निकाल लें तो इससे भी हमारा कंक्लूड होता है कि ये क्या है, इन्वर्स जो लास्ट आपका इक्वेशन निकला था इसका अगर हम इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे वी आर एबल टू गेट एच एन इक्वल्स टू 1/2 की पावर n प्लस 2 की पावर n u n। और यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं कि एच एन इक्वल्स टू 0 व्हेन n इज लेस देन 0। दोस्तों तीनों तरीके से हमने देख लिया सिस्टम इज कॉजल। नेक्स्ट एग्जांपल एच जेड। हियर आप देख सकते हैं कि आपका पोल जेड इक्वल्स टू, अगर कंडीशन देखें तो जेड इक्वल्स टू ए है। फॉर दिस सिस्टम टू बी स्टेबल द इट्स पोल मस्ट बी इनसाइड द यूनिटी सर्किल, सो वी मस्ट हैव मॉड ए इज लेस देन 1। सो आपका सिस्टम क्या होगा, यहाँ पे स्टेबल होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द जेड ट्रांसफॉर्म।
थैंक यू वेरी मच।